I, Ms. Naneshwari Zori, welcome you all for the webinar organized Pune Management Association on the topic Interview Techniques for Working Professionals. PMA is India's premier. Thank you, Dhaneshwari. On behalf of Pune Management Association, I extend my warm welcome to each one of you. And on behalf of each one of you, I extend my warm welcome to our today's resource person, Ms. Saili Kshirsagar. In fact, many of you may remember last week, 15 days back only, we had a very interesting session on similar subject, design of resume by the same resource person, Ms. Saili. And now looking at the response, we have extended this session. Of course, a slight change. This is mainly for the working professionals. Ms. Dhaneshwari has already talked about the Pune Management Association, some details. I'll focus slightly on the different point, how Pune Management Association is helpful for the HR professionals and students. HR professionals generally are looking for the good candidates as well as good, you can say, professionals who are ready to work for their organization. And yes, for you, for those who are looking for the HR candidates, Pune Management Association has its own employment exchange of various professionals. More than 400 plus professionals have registered and available to you. Secondly, HR is looking for the various topics. Hello, are you able to hear me? Hello? Yes. Yes. Audible, sir. Okay. So HR generally, how it is useful for HR. So HR is generally looking for the candidates. Yes, and Pune Management Association, of course, along with the jointly we have with the Bharat Vikas Parishad, we have employment exchange for you. So you will be able to get suitable candidates for you. Secondly, generally HR professionals are looking for the trainers as well as various topics for the training. And yes, Pune Management Association has got huge database of the trainers, right from the soft skills to the technical topics, even IT topics available for you. So we can definitely be helpful on these topics. In fact, PMA has been conducting regularly the paid program, workshops, seminars, as well as free webinars for the benefit of professionals. HR is generally looking for the various topics which we are definitely helping you through our various webinars. Believe me, more than 250 webinars were held in recent past to just enrich your knowledge, expand your reach, and upskill the professionals who are attending them. Yes, we have collaborations with large number of institutes, MBA institutes as well as engineering colleges. So yes, their facility also would be available through PMA. As Dhaneshwari has said, PMA is multi-facilities, multifarious activities. So right from HR to sales and marketing, we have divided 14 different verticals, and we are operating through these 14 verticals for the benefit of members as well as the society in general. So in fact, next week we will be establishing one more vertical for the women professionals. On 8th March we will be starting that. Yes, last week itself we have started yet another vertical. Earlier it was called as students chapter, but now it is called as Industry Institute Coordination. So I request all of you to take benefit of this, and you can visit our website to know more details of PMA. Thank you all once again. Saili
Shirsagar ma'am to please address the audience on the topic interview techniques for working professionals. And next hand over to Miss. Thank you, PMA, Pradeep Tupe sir, and Gnaneshwari madam. That it was a really nice startup, and I am amazed that there are nearby 101 people they have at the interview, or they might do the mistakes. So to avoid those mistakes, I am here to help you. Actually, even I am having a very large experience in automobile industry as a HR. I have taken so many. Sometimes I have realized कि there are many students, there are many professionals, they are having a very good experience in their domain, but they are failed to present their work in front of management or in front of the company. So there is a need to tell your mistakes or how to present yourself during the interview. So I have decided to take such sessions to conduct such sessions, so it will be helpful to you. And I'm really happy that the crowd is so high, and there is a need to have such type of sessions for you people. Now, before going ahead, I have to show you one video which will give you present yourself. So you came to know कि, how you have to present yourself during the interview. Okay, so let's start. First, I will show you the video कि how you have to face the interview. Was 13-year-old boy, and he got selected in Google. So let's see how he faced the interview, and that video was so much viral on WhatsApp and Facebook that I was so impressed because his body language, his communication, and his means he was laughing during his interview. How he present himself during the interview. It was very nice to share that clip with you. Capacity full झाली. So Capacity full झाली. why I showed you this video? Have you seen his comfort level? His body language? How comfortable he was, how fluent he was, and of course, both, not only the interview, both parties, interview taker and interview giver, both the parties, how they were comfortable. So this is the very and most important thing is how you are comfortable, how you make front person comfortable. You have to be very quiet, you have to be a very silent, not silent, but your mind should not be in a very what I can say, it should be a quiet. You should not be in tension, you should not having any tension when you are going for an interview. Okay, so now I will start my presentation. So shall I start in English or Marathi, Hindi? Which language are you okay? English is good. Hindi and English both. English. Okay, now how you feel इंटरव्यू टेक्निक्स एंड प्रिपरेशंस? ये तो क्या मैम हमेशा यही बताएगी, कुछ अलग बताएगी नहीं, लेकिन आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट कि आप लोग मिस्टेक्स कहाँ करते हो. एज ए HR आई हैव एक्सपीरियंस सो मेनी थिंग्स दैट यू पीपल आर डूइंग सो मेनी मिस्टेक्स. That mistakes you have to avoid. Please switch it to Okay. full board, full screen. Presentation now. Okay, okay, okay. Ma'am, if possible, please Hindi and English both of language explain. Yeah, okay. Then it is okay to communicate in Hindi. I am comfortable in Hindi and English, but if possible, I can communicate in Hindi also. Okay. Is it okay? Yes, ma'am. It's okay. Okay. Now my firm name is Silis Connect 9.
और मैं HR फील्ड में बहुत काम किया है। आई हैव वर्क नियर बाय 9+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन HR इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। जैसे ही ज्ञानेश्वरी ने मेरा पूरा एक्सपीरियंस बताया है। और मैं जो भी प्रोफेशनल लोग हैं उनका रेज्यूम डेवलप करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, मॉक इंटरव्यूज लेती हूँ, सो दैट आप लोगों को पता चले कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ है, आपको कैसे कॉन्फिडेंस गेन करना है। अभी पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब गलवा है, बहुत सारे लोगों को जॉब्स गए हैं, तो ऐसे टाइम में उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो आई एम देयर टू गिव दैट कॉन्फिडेंस, ताकि वो जो इंटरव्यू है वो फेस कर सके। तो मैं लोगों का काउंसलिंग करती हूँ, उनको मॉक इंटरव्यूज लेती हूँ। मॉक इंटरव्यू में उनके जो भी मिस्टेक्स है वो उनको पता चलता है। और इवन मैं ट्रेनिंग्स भी लेती हूँ, कुछ बिहेवियरल ट्रेनिंग्स है और कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग्स है, उसके मैं ट्रेनिंग्स भी लेती हूँ। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट अभी रेज्यूम डेवलप हुआ। आपका जैसा रेज्यूम है जो आप डेवलप किया, अच्छी तरीके से उसको डेवलप करने के बाद आप naukri.com यूज़ करते हो, टाइम जॉब्स यूज़ करते हो, या shine.com यूज़ करते हो, या प्लेसमेंट एजेंसीज, यू डोंट नो। आपका रेज्यूम अगर मार्केट में आपने अपलोड किया, आपका रेज्यूम ये सारे वेबसाइट में, तो आपको पता नहीं है कि आपका रेज्यूम कौन से लोग देखने वाले हैं, कौन से लेवल के लोग देखने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव लेवल से लेके CEO तक आपका रेज्यूम जब naukri.com तो पोर्टल पे जाता है, तो आपका रेज्यूम बहुत सारे लोग देखते हैं। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि आपका रेज्यूम में सारे इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, जाने के वो लोग आपको कॉल करेंगे, उनको ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं बाबा, ये लड़के में कुछ तो बात है, तो उसको मैं इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाना ही चाहिए। ही शुड फील कि या ये पर्सन है कि ये काम कर सकता है, ये मेरे प्रोफाइल को फिट बैठ सकता है। तो जब भी आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है किसी कंपनी में, उसका नेक्स्ट स्टेप आता है कि HR विल कॉल यू। HR और रिक्रूटर आपको फोन करेगा कि आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ है, तो आप इंटरव्यू के लिए ये तारीख को, ये टाइमिंग को आ सकते हैं क्या। तो बहुत सारे प्रोफेशनल यहाँ पर ही गलती करते हैं। आपको जब भी इंटरव्यू शेड्यूल करना है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो दिन या वो टाइम में आपको रियली इंटरव्यू के लिए आप अवेलेबल हो सकते हो क्या। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी कैसा है, बहुत सारे कंपनीज ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसे दोनों भी मोड पे काम कर रहे हैं। कुछ कंपनी ऑफलाइन इंटरव्यू लेते हैं, कुछ कंपनी ऑनलाइन इंटरव्यूज अभी भी ले रहे हैं। तो आपको श्योर करना है कि आप इंटरव्यू, जब HR बोलेगा कि ये टाइम को आपको इंटरव्यू के लिए आना है, यू हैव टू थिंक फर्स्ट कि आपको वो दिन, वो टाइम आप इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हो सकते हो क्या। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप लोग पहले HR को कमिट करते हो कि यस मैडम, मैं उस दिन इंटरव्यू के लिए आने वाला हूँ, मैं वो तारीख को अवेलेबल हूँ। लेकिन एंड टाइम पे आपका कुछ तो काम हो जाता है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम आता है, ऑडिट आता है, या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप क्या करते हो, आप कैंसिल करते हो। तो ये क्या होता है, HR को एक रॉन्ग इंप्रेशन जाता है, HR हो या कंपनी हो, वो रॉन्ग इंप्रेशन जाता है कि देखो ये पहले लड़के ने कमिट किया कि ये तारीख को वो इंटरव्यू, तो वो इट इज इरिटेटिंग टू HR कि एंड टाइम पे मैं मेरे बॉस को क्या बोलूँ, एंड टाइम पे वो HOD को क्या बोलूँ। ओके, तो ये मत कीजिए आप कैंडिडेट लोग। अगर आपको रियली इंटरव्यू फेस, यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन दैट डे। ओके, तो सिर्फ प्रेजेंट ही रहना है क्या? नो, योर माइंड शुड बी वेरी प्लीजेंट, इट शुड बी इन अ क्वाइट। तो अगर आप जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और आपके मन में कुछ तो टेंशन है, या घर का प्रॉब्लम है, या कुछ ऑफिस का प्रॉब्लम है, अगर वो मन में रख के अगर आप इंटरव्यू को जाओगे, तो इट विल अफेक्ट योर बॉडी। इसलिए मैंने पहले आपको तन्मय बख्शी का आपको मैंने वीडियो दिखाया। क्यों दिखाया? वो टेंशन में दिखा क्यों किया? क्योंकि हिज माइंड वॉज प्लीजेंट, इट वॉज नॉट इन वरीड और नॉट इन टेंशन मोड। ओके, तो ये सबसे ध्यान में रखना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। अगर आप इंटरव्यू शेड्यूल करते हो,
यू हैव टू चेक इट आउट कि बाबा उस दिन मेरा कुछ एक इम्पोर्टेंट काम तो नहीं है ना, मेरा कुछ कंपनी का ऑडिट तो नहीं है ना, या कुछ और XYZ काम नहीं है ना। ओके, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और अगर आपका कुछ दिन शेड्यूल हुआ, ओके, कि सपोज मेरा ये तारीख को मैं ओके हूँ, मैं उस दिन इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ, तो आई रिक्वेस्ट यू पीपल कि एटलीस्ट वो देने वाला हूँ, आई विल बी ओके, आप मेरा कंफर्म समझ लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉल बैक करो HR को, HR हो, रिक्रूटर हो। बहुत सारे रिक्रूटर का ये इतना प्रॉब्लम है कि HR को हाथ पैर पड़ने पड़ते हैं, अरे बाबा आओ, उनको यहाँ पे ये किया है, उनको यहाँ पे ये मैंने बोल के रखा है। कंपनी का प्रोफाइल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अरे यार ये कंपनी में 4 साल हो गए, मुझे कंटाला आ गया, अभी मुझे दूसरे कंपनी में जाना है। तो मोस्ट ऑफ लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फिर बाद में उनको पता चलता है अरे ये कंपनी में ऐसा है, कल्चर अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मैं कहाँ आके फंस गया। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कैंडिडेट्स लोगों को, कंपनी का प्रोफाइल पढ़ो। आपके फ्रेंड्स लोगों में, अच्छे प्लेसमेंट एजेंसीज में आप वो कंपनी का बैकग्राउंड चेक करो, कल्चर चेक करो, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, वहाँ का टर्नओवर कितना है, वो कंपनी का टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है। ये सारी चीजें आप प्रोफाइल पूरा गो थ्रू करो। इससे क्या होगा, आपका माइंड पूरा प्रिपेयर्ड हो जाएगा। दूसरा एक चीज है कि वहाँ पे जो HR होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ HR लोग रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं, लेकिन अगर बाय मिस्टेक अगर किसी HR ने नहीं दिया, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैडम आप रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं वो पोजीशन का। ये क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर एक रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पोजीशन है सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर को 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन वो कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको सेफ्टी ऑफिसर को अगर 10 पॉइंट्स अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपको ऑडिट फेस करना मालूम है, आपको सेफ्टी कंप्लायंसेस मालूम है, तो आपको ऐसे सेफ्टी रिलेटेड अगर 10 चीजें मालूम है, लेकिन वो कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है ये आपको मालूम रहना चाहिए। अगर आपको कंपनी क्या बोल रही है, नहीं मुझे हमें ऑडिट फेस करने वाला सेफ्टी ऑफिसर नहीं चाहिए, सपोज एग्जांपल में बोल, तो आपको समझेगा कि कंपनी का फोकस सिर्फ ये सिचुएशन को है कि ये उनको इम्पोर्टेंस चाहिए। तो आपको समझेगा कि आपको इंटरव्यू देते से इसके ऊपर काम करने वाला, करेक्टिव एक्शन लेने वाला सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, तो आपका फोकस बढ़ गया उसमें। तो इसलिए कंपनी के रिक्वायरमेंट, कंपनी के एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी से समझ में आता है। इसलिए आपको HR को रिक्वेस्ट करना है, कुछ HR देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। इफ आपको HR को रिक्वेस्ट करना है कि मैडम प्लीज आप उसका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे वहां पे क्या काम है। ओके, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, ड्रेस कोड। ओके, नेक्स्ट आता है, आपको कंपनी का प्रोफाइल पता चला, आपको कंपनी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली, आपको कौन से दिन इंटरव्यू को जाना है, कौन से टाइम को जाना है, ये आपको अच्छा सा स्लाइट कलर वाला, एकदम डार्क कलर वाला नहीं, एकदम स्लाइट जो प्लीजेंट हो, आंखों को देखने में कुछ ऐसा ये नहीं होना चाहिए, अरे बाप रे ऑरेंज कलर का शर्ट पहना उसने, अरे बाप रे रेड कलर का, नो, आप ब्लू कलर, व्हाइट कलर, ऐसे लाइट कलर के शर्ट प्रॉपरली उसको इन किया हुआ। ओके, अगर चाहे तो आप एक टाई भी पहन सकते हैं, आप हैंकरचीफ रखो आपके पास। दूसरा है, शूज पहनना है या सैंडल पहनना है, जो आपका ड्रेस रहेगा उसको जो सूट होगा वो आप पहन लीजिए। सैंडल मत पहनो, अगर आपने अच्छा पैंट शर्ट पहना है तो शूज, हैव अ शूज, चप्पल पहन के मत जाओ। ओके, और लेडीज गर्ल्स को मैं बोलूँगी पॉसिबल हैव अ साड़ी इफ दे आर कंफर्टेबल, अदरवाइज एक अच्छा सा ड्रेस जो झैक पैक ना हो, एकदम नॉर्मल, जिसका कलर एकदम ओके हो,
लाइट हो ऐसा कलर आप पहन के जाओ, ज्यादा गहने या ज्यादा सोने का वगैरह कुछ ज्यादा पहनने की जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल अच्छा सा लुक करके आपको जाना है। तो जो भी आप ड्रेस या जो भी आप पैंट शर्ट पहनने वाले हो वो प्रॉपरली आयर्नड होना चाहिए। तो जब आप इंटरव्यू को जाने वाली वो दिन को आपको आयरन नहीं करना है, आपको ये बिफोर 2-3 डेज यू हैव टू ये आपको तैयारी करके जाना है। नहीं तो जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन आप आयरनिंग करने के लिए डालते हो। तो ऐसा मत करो, जिस दिन आपको इंटरव्यू पे जाना है उस दिन कुछ भी झंझट नहीं रखना है, कुछ भी काम नहीं रखना है। इवन रेज्यूम का प्रिंट आउट भी आपको उस दिन नहीं निकालना है। ओके, तो ड्रेस कोड ऐसा है, टी शर्ट्स मत पहनो कि ड्रेस कोड के बारे में हो गया। नाउ नेक्स्ट इज आपका रेज्यूम प्रिंट। रेज्यूम प्रिंट भी मैं बोलूंगी कि यू हैव टू कीप 2 कॉपीज ऑफ योर रेज्यूम्स, क्योंकि अगर एचआर ने अगर रेज्यूम लिया और किसी और सीनियर पर्सन को अगर रेज्यूम देने की जरूरत आ गई तो यू शुड हैव एटलीस्ट 1 कॉपी विथ यू। तो मैं बोलूंगी कि एटलीस्ट रेज्यूम की 2 कॉपीज रखो। दूसरा है कि आपका एक डॉक्यूमेंट का फाइल रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इंटरव्यू के लिए चेक नहीं करते कि अरे बाप रे इसका क्या है क्या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करते, लेकिन फिर भी वो डॉक्यूमेंट का फाइल है ना वो प्रॉपरली अलाइंड करो। मतलब पहले एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपके कंपनी के अपॉइंटमेंट लेटर्स, कंफर्मेशन लेटर्स, प्रमोशन लेटर्स या परफॉर्मेंस अप्रेजल के कुछ लेटर्स, इंक्रीमेंट के लेटर्स, पे स्लिप्स, ऐसे प्रॉपरली उसको अरेंज करके रखो ताकि आपको भी इजीली मिले। और अगर एचआर ने अगर मांगा तो आपको भी इजीली देने के लिए वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो आपकी फाइल वो अच्छी तरीके से नीटली यू अरेंज इट। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सब आपने तैयारी कर ली, आपकी फाइल अच्छी तरह से लगाई, रेज्यूम का अच्छा प्रिंट ले लिया, ड्रेस कोड आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद है कि आपकी कंपनी कहाँ पे है, वेन्यू पे 1 घंटा पहले आप पहुंच जाओ। ओके, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का लोकेशन मेरे घर से कितना दूर है, 1 घंटा लगेगा, सब पहले ही डिसाइड करके रखो और फिर वहां पे आप जाओ। अभी 1 घंटा पहले आप कंपनी में पहुंच गए, फिर थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, वॉश। आप इंटरव्यू के लिए अगर आपको प्लीजेंट लगेगा तो वो इंटरव्यू जो लेने वाला है उसको भी अच्छा लगेगा। ओके, और आपको 1 घंटा मिलता है, भूल जाओ। तो फिर कंपनी के एचआर कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है, एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, वो भरने के लिए भी आपको टाइम मिलता है। आपको आपका खुद का रिज्यूम पढ़ने के लिए टाइम मिलता है। बहुत सारे लोग, और एक बहुत बड़ा मिस्टेक यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग रिज्यूम पे लिखते हैं कुछ लाइन, हाँ, लेकिन बाद में वो भूल जाते हैं कि मैंने ऐसा कुछ लिखा था, और उसी के ऊपर अगर एचआर ने या किसी ने क्वेश्चन किया तो आपको उसका जवाब देने को नहीं आता है। ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस्ड किया है। तो मैं बोलती हूँ कि एप्लीकेंट को, कैंडिडेट को आपका खुद का रिज्यूम 4 to 5 टाइम्स यू हैव टू रीड इट। जब तक आपके माइंड में वो फिट नहीं होता ना कि ये लाइन में ये है, ये कंपनी में मैंने ये काम किया है, मैंने ये ऐसा चैलेंज वहां पे फेस किया था, मुझे ये प्रॉब्लम आया था, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरे टेक्निकल स्किल्स ये है, मेरे सॉफ्ट स्किल्स ये है, ये सब आपको रिवाइज हो जाता है और आपके दिमाग में फिट होता है। तो अगर आपको इंटरव्यू ने पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो तभी आपको आपका रिज्यूम पूरे दिमाग में रहना चाहिए कि मैंने क्या कहा कैसे काम किया था। तो यू शुड नो, यू शुड गेट कनेक्टेड विद योर रिज्यूम लाइन बाय लाइन। एचआर ने पूछा कोई भी सवाल ना, हाँ ये सेकंड पेज पे ये मैंने लिखा था, ये फर्स्ट पेज पे ये मैंने लिखा था, इतना आपको वो याद रहना चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि रिज्यूम जो है आप पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ो। ओके, तो फिर 1 घंटा हो गया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और फिर वक्त आता है आपका इंटरव्यू का। इंटरव्यू का तो मैंने बोला है कि आपका अगर माइंड, मैं फिर से बोलती हूँ, आपको कोई भी ये बताएगा नहीं, इफ यू आर कंफर्टेबल एंड इफ यू मेक फ्रंट पर्सन कंफर्टेबल, यू विन 90% ऑफ योर बैटल। कोई भी सिचुएशन हो,
अगर सामने वाला भी अगर लाइफ में अगर सामने वाला बहुत आपके ऊपर तनतनाते करके आया, आपके ऊपर बहुत गुस्सा करके आया, तो यू हैव टू बी अ वेरी क्वाइट एंड यू हैव टू मेक दैट फ्रंट पर्सन कंफर्टेबल कि सी, अगर आपने मुझे ये कंपनी में हायर किया कि आपने मेरे साथ अच्छी तरीके से बात की, तो आपको कुछ हार्म होने वाला नहीं है मुझसे। ओके, ये जो एक फील है ना, अगर आपने ये फील सामने वाले पर्सन को दे दिया, वो था जो इंटरव्यू लेने वाला है वो पर्सन ने भी देना चाहिए वो फील, और जो इंटरव्यू देने वाला है वो दोनों को भी वो लेवल पे काम करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू लेने वाला वो कंफर्ट लेवल देता नहीं है, वो आपको टेंशन ही देगा, वो प्रेशर ही देगा, लेकिन फिर भी इवन इन दैट सिचुएशन यू हैव टू बी अ वेरी काम, क्वाइट, एंड यू हैव टू बी, योर माइंड शुड बी वेरी क्वाइट एंड कंफर्टेबल। तभी आप 90% आपका इंटरव्यू जो है वो आप सिक्सर मारेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने बोला कि जब भी आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, आप एक भी काम दिमाग में मत रखो, एक भी टेंशन आप दिमाग में मत रखो, और विथ अ वेरी पॉजिटिव माइंड यू हैव टू गो। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लोग इतने इंटरव्यू देते हैं, 5-6 इंटरव्यू दिया, 7-8 इंटरव्यू दिया, फिर भी फेल होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ऐसे टाइम में आपको, आप कैसे इंटरव्यू देते हैं वो आपको, यू हैव टू कीप इट इन माइंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आपको अलर्ट रहना है, आपको कॉशियस रहना है कि मैं कैसे इंटरव्यू दे रही हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर आपको रिजेक्शंस आ रहे हैं कंपनी से, तो इट्स नॉट ओनली कैंडिडेट का मिस्टेक है या एप्लीकेंट का मिस्टेक है, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, इतने अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स रहते हैं, इतने अच्छा उनका नॉलेज रहता है, अगर कंपनी ने उनको हायर किया ना तो कंपनी को बेनिफिट ही हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें हम, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक क्वालिटी इंजीनियर है, वो क्वालिटी इंजीनियर अच्छा है, उसका नॉलेज है, सब है, उसका पैकेज वो बोल रहा है 4 लाख, और मेरे कंपनी में ऑलरेडी क्वालिटी इंजीनियर है, उसका पैकेज है 3.5 लाख। अगर मैंने सेम लेवल के पोजीशंस को, एक को मैंने 3.5 का पैकेज दिया और Miss Saili Shirsagar ma'am. Thank you ma'am for sharing your valuable inputs regarding Thank the you. interview techniques and preparations. You told us how we should be presentable while giving the interview. You gave us example which motivated us. You told us where we make mistake and we surely promise you that we will be doing our best. You told us how we should give sixer while giving our interview. And surely your videos were very interesting. Ma'am, your inputs were really valuable and would definitely help the professionals to face interview. Last but not least, I would also like to thank the participants present today for being a good and patient audience. Thank you. I would like to give a small glance for an upcoming events. So the first event will be crucial